Good morning friends. Today we discuss about some pronouns: reciprocal, emphatic and reflexive. Okay, so let's start without any delay. Please watch full video and like, subscribe and share for your friends. First, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun means पारस्परिक सर्वनाम. पारस्परिक सर्वनाम. पारस्परिक सर्वनाम means we use subject. पारस्परिक सर्वनाम means subject use to use one another or each other is called reciprocal pronoun. One another or each other. One another means एक दूसरे, and each other means also एक दूसरे. Reciprocal pronoun पारस्परिक सर्वनाम. To use one another or each other in a sentence, use one another or each other is called reciprocal pronoun because one another means एक दूसरे is defined पारस्परिक. Mix each other means एक दूसरे defined पारस्परिक mix. Okay, so reciprocal pronoun means to use one another or each other in same sentence, but meanings same, एक दूसरे. So how can we use one another and how can we use each other in a sentence? So one another means we use one another three or more. Okay, and we use each other individual two. Individual two. We use one another in a sentence three or more, not two. We use each other in a sentence two individual, not two or more, three, four. Example: we love each other. And example: Mahesh, Suresh and Rakesh help one another. There are two sentences. Each other, we love each other. Mahesh, Suresh and Rakesh help one another. Okay, we use each other and also one another. Each other means एक दूसरे, one another means एक दूसरे, but we use each other two individual. We, हम. We means two or three or many, but two individual. We use each other in a sentence two, basically two individual. We means three, we means four, but we means two also. So we use each other in individual two, but we use one another three or more, not two. Example: Mahesh, Rakesh and Suresh. In this sentence we don't use each other because each other individual two. Okay, basically individual two. Or in this sentence we don't use one another because one another use three or more. In this sentence individual two, basically individual two. We means three or more. We तीन के लिए, चार के लिए भी यूज हो सकता है, बट we दो के लिए भी यूज होता है. हम
ओके। बट इस सेंटेंस में अगर आपका यूज करना है आपको, तो आप ईच अदर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ईच अदर इंडिविजुअल टू के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये ध्यान देना, सेंटेंसेस को विशेष ध्यान देना। फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंसेस ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस फिल करने के लिए सेंटेंस लिखा रहेगा, आपके पास दो ऑप्शन है कि ईच अदर, वन एंड अदर, दोनों की हिंदी सेम होगी, एक दूसरे, बट आपको फिल क्या करना है वहाँ पर। जब आपको दिखे सेंटेंस कि इसमें 3 आर मोर है, आपको 3 आर मोर दिखे, इसमें भी 3 आर मोर आपको दिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको बेसिकली 3 आर मोर दिख ही रहे हैं। जहाँ पे आपको 3 आर मोर दिखे, सो यू यूज वन अनदर एंड वी यूज ईच अदर टू इंडिविजुअल पर्सन्स, टू इंडिविजुअल थिंग्स। ओके, एनी डाउट? सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स टू यूज वन अनदर और ईच अदर इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, वी लव ईच अदर, महेश, सुरेश एंड राकेश हेल्प वन अनदर। बेसिकली 2 वर्ड्स, वन अनदर एंड ईच अदर, यूज इन अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 2 ही हमारे वर्ड्स होते हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, वन अनदर और ईच अदर। दोनों की हिंदी सेम होती है, यूजेस पे डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कहाँ कर रहे हो। ईच अदर का इस्तेमाल आपको करना है बेसिकली 2 इंडिविजुअल के लिए, और वन अनदर का इस्तेमाल करना है आपको 3 आर मोर के लिए। यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। एनी डाउट किसी को? नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम, इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट विथ ओन। इस प्रोनाउन में खुद की बात की जाती है, स्वयं। हिंदी से आपको दिख रहा है, निजवाचक सर्वनाम मतलब स्वयं की बात की जा रही है। आई अपने लिए स्वयं की मीनिंग क्या यूज कर सकता है? माई सेल्फ। ओके, ही अपने लिए यूज कर सकता है हिमसेल्फ। यू अपने लिए यूज कर सकता है योर सेल्फ। दे themselves, we ourselves, she herself, it itself. There are persons, I, and there are pronouns, person, pronoun, also pronoun. बट यहां पे बात हो रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, जो निज मतलब होता है स्वयं, खुद। एग्जाम्पल, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। यहां पे सब्जेक्ट जो हमने अभी डिफिनेशन दी इसकी, सब्जेक्ट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है अपने ऑब्जेक्ट पे डिपेंड रहेगा, बट ओन, खुद से, किसी दूसरे से नहीं। सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होगा। मैं अपना काम करता हूँ, काम तो मेरा ही है, लेकिन मैं खुद ही करता हूँ, किसी अन्य पे मैं डिपेंड नहीं हूँ। सब्जेक्ट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट विथ ओन, खुद के साथ सब्जेक्ट अपने वर्क पे, अपने ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होगा। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, सेल्फ्स एंड सेल्फ। 2 ही है ऐसे शब्द जिसमें सेल्फ का यूज हुआ है। तो इसका रूल ये होता है कि जो हमारे प्लूरल पर्सन होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, उनमें सेल्फ का इस्तेमाल होता है। प्लूरल हमारे 2 ही होते हैं, एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन का वी, देन थर्ड पर्सन का दे। सेकंड पर्सन में यू भी होता है, बट यू हमारा सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए यू के साथ आप सेल्फ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेसिकली जो हमारे प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं वहाँ पे हम सेल्फ्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दे के साथ देम सेल्फ्स, वी के साथ आवर सेल्फ्स। तो ये चीज़ें जो हमारी इधर पार्ट लिखी गई हैं, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। किसी भी वाक्य में ये अगर आ जाएंगे तो आप उनको डायरेक्टली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में चूज करना। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। बॉयज़ का नेम अगर आ जाएगा, बॉयज़ का नेम मतलब ही, तो हिम सेल्फ। गर्ल का नेम आएगा तो मतलब सी, हर सेल्फ।
ओके, बट ध्यान देना कि ये आपके यूज होंगे कब, इसकी एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, व्हेन दीज आर यूज लास्ट इन सेंटेंस। जब ये शब्द, जब ये चीजें वाक्य में अंत में आएंगी तभी आप उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डाल सकते हो। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन, माई इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन, वर्क इज अ नाउन एंड माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिकॉज माई सेल्फ यूज लास्ट इन द सेंटेंस। ध्यान देना, जब भी आपका ये सारे वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल हो जाए, वाक्य के अंत में इस्तेमाल होंगे, तभी आप उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डालोगे। सेंटेंस को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना और तब वाक्य में आप इसको आइडेंटिफाई करना कि दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन। यही हम देख लेते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन भी। इम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन सेम होते हैं, वर्ड्स भी दोनों में सेम इस्तेमाल होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेम चीज़ें, इम्फेटिक प्रोनाउन में भी सेम चीज़ें। ध्यान देना, हम एक प्रोनाउन के बारे में और यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है जोरदार सर्वनाम। ये ऐसा सर्वनाम है जिसकी हिंदी है जोरदार, वाक्य पे ये जोर डालता है। सेम ये भी है, निजवाचक सर्वनाम का ही रूप है ये, इसकी भी हिंदी आप निजवाचक सर्वनाम ही पढ़ सकते हो। बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि रूल्स पे, रूल्स क्या बनता है इसका रूल्स ध्यान देना, हम इसका रूल बता रहे हैं। रिफ्लेक्सिव का रूल हमने यहाँ लिखा है और इम्फेटिक का रूल है व्हेन दीज आर यूज आफ्टर सब्जेक्ट। जब ये चीजें सब्जेक्ट के जस्ट बाद इस्तेमाल हो जाए, दिस इज इम्फेटिक प्रोनाउन। सेम एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। देर आर टू एग्जाम्पल्स, देर आर टू आंसर इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का देखो मैंने 2 आंसर लिखा है, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। दोनों ही वाक्य बोथ आर राइट, ध्यान देना दोनों ही हमारे राइट हैं। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। बट जब व्हेन दीज आर यूज लास्ट इन सेंटेंस, जब ये चीज़ें वाक्य के लास्ट में इस्तेमाल हो जाएंगी, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड जब ये चीज़ें आपके सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हो जाएंगी, दिस इज इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, जब ये चीज़ें आपकी सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल होंगी, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब ये आपके सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होंगी, दिस इज इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, वंस अगेन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम। देयर आर सम, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। बट यूज व्हेन दीज आर यूज लास्ट इन द सेंटेंस, जब ये वाक्य में लास्ट में इस्तेमाल होंगे तभी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। बट इसी सेंटेंस में आपका एक आता है इम्फेटिक प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है जोरदार सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। जब ये वाक्य में आपका सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज हो जाएगा, व्हेन दीज आर यूज आफ्टर सब्जेक्ट, दिस कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। तो दोनों प्रोनाउन हमारे सेम होते हैं, डिपेंड करता है कि वाक्य में किस जगह पे यूज हुए हैं और वाक्य आपका किस तरीके का है। अगर ये आपके सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएंगे तो आप वहाँ पे इम्फेटिक लिखना, अगर ये आपके वाक्य लास्ट में आएंगे तो आप इनको रिफ्लेक्सिव लिखना। ओके, थैंक यू। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।